ओके, नाउ लैब पार्ट। ओके, तो लैब में हमें क्या करना है? अगर हाइपर वी इंस्टॉल करना है तो सिंपल अपने सर्वर के किसी भी वर्जन पर आ जाएंगे। देन यू कैन सेलेक्ट ऐड रोल एंड फीचर। ओके, नेक्स्ट करेंगे, देन ऐड रोल एंड फीचर, नेक्स्ट, नेक्स्ट, एंड दिस इज द हाइपर वी. So it says Hyper-V provide the services that you can use to create and manage virtual machine and their resources. Okay. So you can select this option and click on add feature, and you can wait for few seconds. It is selected. Now you can click on next button, next button, next button. एंड दिस इज द सिंपल टास्क जो कि आपसे ये पूछ रहा है। आप इसको अगर अलाउ करना चाहते हो, जैसा भी है, जो भी है मैनेज करना चाहते हो आप करो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू अलाउ टू कनेक्ट योर ऑल वर्चुअल मशीन और टू कनेक्ट योर गेस्ट मशीन directly with your NIC card, you can check this particular option. Okay, this is my physical NIC card. If you want to connect your guest machine with physical NIC card, you can select this option. Either you can just ignore and click on next button. Okay. Later you can configure as per your need and requirement. Okay. Then allow the server to send and receive live migration of virtual machine. No, there is no live migration. Next. And this is the location. This is the virtual hard disk location, and this is the Hyper-V location. Okay. If you want to change, you can change. Okay. Next. And then restart, and then yes, and then install. This is the simple step to install the Hyper-V in your server. Okay. And if you want to install on client operating system, then there is no problem. You can just use advanced version of client operating system. It may be Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 11, Pro version, Enterprise Edition. Okay, where you can install from the feature option. Okay, so this is the simple step to install the Hyper-V. And let me show that how to set up virtual machine. Still, I am using this particular machine in virtual environment. बट ये एक प्रॉपर तरीका नहीं है। जस्ट आपको लैब का स्टेप मैं दिखा दूं, रेस्ट यू कैन मैनेज। ओके, सर मैं अभी ज्वाइन हुआ था, क्लास अभी स्टार्ट हुआ सर। क्लास तो अपने टाइम से स्टार्ट हुआ, 8:30। ओके ओके सर, ओके सर। पावर अप था सर, इसलिए पावर अप हो गया था। ओके ओके, रिकॉर्डेड से कवर कर लेना। हाइपर भी पढ़ा रहे हैं। ओके सर, ओके सर। ओके, डन। नाउ यू कैन लॉग इन योर मशीन एंड सी this is the complete server with Hyper-V. Now you can see there is another role which is Hyper-V, and you can run this particular Hyper-V in your machine. Okay, and you can create multiple virtual machine behalf of Hyper-V. Okay, let me show how to set up Hyper-V machine. Okay, let me create a machine. So see, let me close this one. This one is the new role in this server. So you can open Hyper-V manager from the tool option. Okay, and this is the final Hyper-V setting. Let me zoom the screen.
for proper visibility. And see, this is the Hyper-V setting. Okay. So here you can manage different settings like this is the domain one. This is my server name. Okay. And this is for server settings. Okay. There is no any virtual machine now, but you can create new virtual machine with the help of these all settings. Okay, either you can right click and create new and create virtual machine, either you can select this option and create new virtual machine. Okay, दोनों में से जो भी आपको select करना है आप उसका इस्तेमाल करके virtual machine create कर सकते हो. But there are different option. Okay, you can see first option is let me show. Yes, first option is new. From this option you can create new virtual machine. Import means if you want, if you have already any virtual machine, then you can import. Okay, import means मंगाना, export means भेजना. So अगर आपके पास पहले से कोई virtual machine का data पड़ा हुआ है, you can import that machine and directly run your machine. Okay. This is the Hyper-V setting. Okay, means this is the BIOS based setting. जैसे आप अपने मेन कंप्यूटर में BIOS की सेटिंग करते हो ना, ये आपके Hyper-V का मेन सेटिंग है. And next you can use switch manager. This is the switch manager. This is the important topic. Okay, ये चीज आपसे इंटरव्यू एग्जाम या कंपनी के अंदर पूछा जा सकता है. जैसे switch manager, there is external switch connect our private virtual machine with public internet connection. Internal means your virtual machine can communicate with your host machine. And private network interface card means you can connect only isolated, means virtual machine to virtual machine. Okay, so it is डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरीके का एनआईसी कार्ड देना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल मैं क्रिएट पर क्लिक करता हूं और मैं देना चाहता हूं लैन वन. ओके, लैन वन प्राइवेट. इससे ये रहेगा कि जिसको मैं ये कार्ड असाइन करूंगा वो हमारे प्राइवेट लैन के साथ कनेक्ट होगा. मतलब वो सिर्फ हमारे वर्चुअल मशीन से वर्चुअल मशीन में डेटा शेयर कर पाएगा और किसी को नहीं. ये जस्ट मैंने एक शेयर कर दिया, देखो लैन. ओके, अनदर अगर मैं न्यू पर आकर यहां से क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन मींस इंटरनल पर क्रिएट करूं, दिस इज फॉर इंटरनल लैन. ओके, और मैंने यहां इंटरनल सेलेक्ट कर लिया एंड देन अप्लाई, डन, एक इंटरनल हो गया. अनदर मैं यहां से आता हूं और एक और मैं क्रिएट कर लेता हूं विच इज फॉर एक्सटर्नल वैन. बाहर के सभी कंप्यूटर इसके इसके साथ कनेक्ट होंगे. सो दिस इज एक्सटर्नल एंड दिस इज माय मेन इंटरफेस कार्ड विच इज अवेलेबल इन माय मेन सर्वर. ओके, मैं इसको यूज करूंगा, अप्लाई ओके कर लूंगा, अप्लाई एंड ओके, सिंपल. ये थोड़ा सा अपडेट ले रहा है. तो इस तरीके से आप वर्चुअल स्विच मैनेजर इस्तेमाल करोगे. सैन मैनेजर स्टोरेज एरिया के लिए होता है, अभी इग्नोर कर सकते हो आप, बाकी यहाँ से कोई ऑप्शन आपको टच नहीं करना है. Now, if you want to install new hardware, new virtual machine, or if you want to install Windows 7, 8, 10, whatever, so you can right click, create new virtual machine, and select virtual machine, and click on next button. Same process of VMware. बाकी यहाँ से आपका क्या है, सेम इंस्टॉलेशन प्रोसेस है. सो व्हाट इज योर मशीन नेम? आई वांट टू इंस्टॉल विंडोज सर्वर 2000. Yeah, I want to install Windows 7, for example. So do you want to store the virtual machine in different location? No. This is the default location. I want to store the database of Windows 7 in this location. I don't want to change the location. Okay. Then next button. Then generation 1, generation 2. If you have older operating system, then select generation 1 for 32-bit and non-secure boot. And if you have generation 2, means the latest operating system with secure boot or 64-bit operating system, you can select generation 2. So I'm going to select generation 1 for Windows 7 because Windows 7 properly work with generation 1 or 32 and unsecure, insecure boot. Okay. 1024, then next, this is the RAM, and this is the LAN internal and external.
अब बताओ मुझे क्या कनेक्ट करना है। अगर मुझे अपने इस विंडोज 7 को लैन प्राइवेट में कनेक्ट कर दूंगा तो ये हमारे होस्ट मशीन से भी नहीं बात करेगा, हमारे इंटरनेट को भी नहीं सपोर्ट करेगा। अगर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया इंटरनल लैन में, तो ये जितने भी वर्चुअल मशीन हैं, मतलब कि हमारा मेन कंप्यूटर और हमारा, मैंने अभी यहां पर समझाया था ना, लेट मी शो वन मोर टाइम ये डायग्राम। अगर मैंने प्राइवेट ले लिया तो ओनली वर्चुअल मशीन और वर्चुअल मशीन आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। इंटरनल जो मैंने सेलेक्ट किया, तो हमारा वर्चुअल मशीन और हमारा जो करंट सर्वर जिस पर हाइपर वी चल रहा है वो कम्युनिकेट करेगा। एक्सटर्नल लिया तो हमारा वर्चुअल मशीन, हमारा सर्वर और हमारे इंटरनल एक्सटर्नल सभी कम्युनिकेशन होंगे। तो मैंने यही तीन एडाप्टर यहाँ पहले से बना दिया। तो अगर मैं यहाँ से लैन प्राइवेट इंटरनल एक्सटर्नल जो लेना चाहूँ वो ले सकता हूँ। मैं लैन प्राइवेट रहने देता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। एंड दिस इज विंडोज 7 VHDX, द एक्सटेंशन ऑफ हाइपर वी VHD इज VHDX, एंड दिस इज द लोकेशन। व्हाट इज द डिस्क साइज टू इंस्टॉल विंडोज 7? तो विंडोज 7 तो 20 GB में भी इंस्टॉल हो जाएगा, कह रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कर देना है। आई विल इंस्टॉल दी ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। अगर ISO फाइल है तो उसको यहीं अटैच करके इंस्टॉल कर लो, नहीं तो बाद में इंस्टॉल कर लेना। तो मैं बाद में कर देता हूँ, मुझे करने की जरूरत नहीं है। कॉन्फ़िगर कर दिया एंड डन। दिस इज द न्यू विंडोज 7। इसको कनेक्ट करो और स्टार्ट कर दो, आपका विंडोज 7 ऑन हो गया। बट इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, मैंने इंस्टॉल नहीं किया क्योंकि कोई जरूरत नहीं, इसके आगे आप जानते हो इंस्टॉलेशन प्रोसेस, राइट? Now you can see, you can select Windows 7 and these are the setting for your Windows 7 machine. Check this one, these all settings, these all settings for Windows 7 machine. Connect means you can connect and turn on your Windows machine. Setting means related this machine setting, you can select this option. Start करना है। चेक पॉइंट इज द पार्ट ऑफ स्नैपशॉट। जैसे इस मशीन का नया सेटअप मैंने करके बिल्कुल ओके करके रख दिया और इसका एक स्नैपशॉट बना दिया आज की डेट का, तो आगे मैं 10 दिन तक इसमें लैब प्रैक्टिस करता गया, डेवलपमेंट टेस्टिंग करता गया। जहां कहीं प्रॉब्लम आया, मशीन करप्ट हो गया, मैं तुरंत चेक पॉइंट पर आकर क्या कर लेता हूँ, इसको रिट्रीव कर लेता हूँ। तो वहीं से हमारा मशीन दोबारा मिल जाता है। जस्ट आपको क्लिक करना है इस पर और देखो आपका चेक पॉइंट यहाँ बन गया। राइट क्लिक करना है और अप्लाई कर देना है, आपका ये रिट्रीव हो जाएगा। क्लियर है? चेक पॉइंट क्रिएट स्नैपशॉट, ओके। देन यहां से आप इसको रिवर्ट चेक पॉइंट को कर सकते हो, मूव एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट मतलब कि मैं चाहता हूं इस मशीन का बैकअप लेना, भेजना, तो मैं डेस्कटॉप पर इसका सिलेक्ट कर लेता हूं और एक्सपोर्ट कर देता हूं। देखो डेस्कटॉप पर ही आ गया विंडोज 7। और इनकेस अगर ये मशीन अब यहाँ से डिलीट भी हो जाए, किसी ने डिलीट कर दिया जो कुछ भी है, और मुझे दोबारा इसको वापस लाना हो, सो आई कैन सेलेक्ट इंपोर्ट मशीन ऑप्शन एंड सेलेक्ट दिस वन, देन सेलेक्ट डेस्कटॉप, देन नेक्स्ट। क्या हो गया भाई? अच्छा, विंडोज 7, सेलेक्ट दिस वन, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नो नीड टू मेक एनी चेंजेस, नेक्स्ट एंड फिनिश। आपका विंडोज 7 वापस आ गया, ओके। तो इजिली एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ओके। ये सारी चीजें हैं। तो बाकी यहाँ से और कुछ है अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ रेप्लिकेशन वगैरह अगर करना है तो वो भी कर सकते हैं। रेप्लिका मीन्स यू कैन रेप्लिकेट योर वर्चुअल मशीन विद अनदर मशीन, ओके। तो ये सारी चीजें होती है ट्रांसफर और फेल ओवर क्लस्टर और इन सारी चीजों के लिए। बट हमारे पास एक फिजिकल मशीन का एनवायरनमेंट होना चाहिए। वर्चुअल मशीन में ये सब फीचर्स आपके अवेलेबल नहीं होंगे। तो यही कुछ सेटिंग्स है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। चेक पॉइंट वगैरह यहाँ पर होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। मशीन को दूसरी मशीन में मूव करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, ओके। मूव द वर्चुअल मशीन, मूव द वर्चुअल मशीन स्टोरेज, सिर्फ स्टोरेज को अगर मूव करना है तो स्टोरेज को मूव कर सकते हो, ठीक है, ओनली स्टोरेज को। तो स्टोरेज वगैरह की ओवर फाइल वगैरह निकाली जाती है ना, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो, मैनेज कर सकते हो। सो दीज आर द सिंपल सेटिंग, ओके, जिसको आप यूज करोगे। एंड डिलीट एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिवर्ट चेक पॉइंट, चेक पॉइंट वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वर्चुअल स्विच मैनेजर वगैरह का कॉन्सेप्ट होता है।
एंड एक चीज मैं यहाँ से दिखाऊं, इस पर क्लिक करने के बाद इसका सेटिंग अगर मैं दिखाऊं, सो दीज आर दी बायोस सेटिंग फॉर योर विंडोज 7 मशीन। ओके, आप कभी भी नेटवर्क अडॉप्टर को चेंज कर सकते हो। बायोस के अंदर आपको क्या करना है, सिक्योरिटी आपको क्या करना है, रैम आपको बढ़ाना है बाद में तो कर सकते हो, प्रोसेसर आपको बढ़ाना है 1 से 2 करना है आप कर सकते हो। आपकी हार्ड डिस्क यहाँ से चेंज करनी है, बढ़ानी है, कुछ भी है, नई हार्ड डिस्क ऐड करनी है तो न्यू में जाके कर सकते हो। सीडी डीवीडी राइटर में कुछ ऐड करना है कर सकते हो। लैन इंटरनेट, लैन है अभी, इसको मुझे इंटरनेट चलाना है तो मैं एक्सटर्नल करके अप्लाई कर दूंगा, इंटरनेट चलना स्टार्ट हो जाएगा इस विंडोज 7 की मशीन पर। तो आपके पास सारे ऑप्शन यहाँ पर हैं, जैसे कि हमें वीएम, मेरे मेन कंप्यूटर का बायोस ओपन होता है। देखो ये पूरा का पूरा बायोस सिस्टम ही तो है। क्लियर है सबको? जी सर। ओके। अगर आप में से कोई अपना विंडोज मशीन रन कर रहा है तो अपना स्क्रीन शेयर करो, मैं हाइपर भी इंस्टॉल करवा दूं। अगर कोई करना चाहे तो अभी समय है किसी का शेयर कर सकता है अपना कंप्यूटर स्क्रीन? सभी लोग मोबाइल से ज्वाइन कर रहे हो क्या? सर, वो समझ में आ गया अभी सर्विस का। ओके। एक चीज हम अ, लोग और मैं यहाँ मेरा हाँ हाँ। मैं मेरा लैपटॉप शेयर करूँ क्या आपको? वैसे तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है हाइपर वी। तो उसको फिर रिमूव करना पड़ेगा फिर से। कोई जरूरत नहीं, कोई ओके। बहुत टफ नहीं है, बहुत ही इजी है। देखो हाइपर बी कर लेना और ये सारी चीजें कर लेना, मशीन वगैरह बना लेना। मैं अगर कुछ प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पर दिखाऊं तो वर्चुअल बॉक्स भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप इस पर भी ट्राई कर सकते हो वर्चुअलाइजेशन करने के लिए, जो बेटर लगे। ये भी फ्री है, हाइपर वी भी फ्री है माइक्रोसॉफ्ट में, और लाइनेक्स में सर, केवीएम वो फ्री है। VMware वर्क स्टेशन बता दीजिए। हाँ, VMware वर्क स्टेशन जो है वो अभी तो पर्सनल यूज के लिए फ्री है, VMware वर्क स्टेशन। तो अब VMware वर्क स्टेशन बदल चुका है और इसको आप ब्रॉडकॉम की साइट से डाउनलोड कर सकते हो, ये ब्रॉडकॉम सपोर्ट पोर्टल। यहाँ जाएं और ब्रॉडकॉम की साइट या ओरिजिनल साइट पर जाएं, यहाँ पर अपना अकाउंट लॉगिन करें रजिस्टर करके, और फिर इसके प्रोडक्ट वगैरह में जाके आपको डाउनलोड करना होगा। ठीक है, ब्रॉडकॉम की साइट से, या तो फ्री फिर आप फ्री वीएम। रहेगा क्या सर ये वर्क स्टेशन? हाँ, ये पर्सनल यूज के लिए फ्री है, कॉमर्शियली नहीं है। VMware वर्क स्टेशन, और आप यहाँ से लिख लो इसका फ्री डाउनलोड। तो इसके अंदर आपको ये अप टू डाउन वगैरह है और सॉफ्ट टॉनिक वगैरह है, यहाँ कहीं से आप एक बार डाउनलोड कर लो। ठीक है, ये 245, ये इतना छोटा सॉफ्टवेयर नहीं होगा कुछ, फाइल साइज 245 ये नहीं है, कुछ ना कुछ वहाँ गड़बड़ है। सॉफ्ट टॉनिक से आप देख लो, 17 क्लिक करके। सर, वो फ्री वर्जन है, उसमें लिमिटेशन क्या है मतलब? कोई लिमिटेशन नहीं कितना है। मैक्सिमम, कितना रैम या ऐसा कुछ स्टोरेज वगैरह है नहीं नहीं, कि जितना चाहे उतना आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिर वो? ओके ओके, फिर उसमें डिफरेंस क्या होगा फिर कॉमर्शियल के कंपेयर में? मतलब लिमिटेड होगा भाई, इतने VM क्रिएट कर सकते हो या इतने, ऐसा कुछ है क्या? ये उसका सब्सक्रिप्शन को देख लो आप, माइक्रो उस पे ब्रॉडकॉम की साइट पर कमर्शियल में क्या दे रहा है वो, है ना। ओके सर। कॉमर्शियल में आपको पैच अपडेट सपोर्ट और सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं, है ना। वेंडर सपोर्ट प्रॉपर मिलता है, पर्सनल यूज में आपको नहीं मिलता है। वो उस तरीके का डिप्लॉयमेंट करते होंगे, लाइसेंस होता होगा तो उस तरीके का डिप्लॉयमेंट आपको या पैच अपडेट आता होगा, है ना। क्लियर है?